So the last lecture, it was regarding the Hofmann exotic methylation. What was it? That whenever a amine is being treated with the methyl halides, especially methyl iodide or methyl chloride, then we are able to tell about the degree of amine by the course of reaction. If 1 mole of methyl chloride utilized, it is 3 degree amine. If 2 are utilized, it is 2 degree amine. If 3 moles are utilized, then it is 1 degree amine. Here is the example where the 3 moles are being utilized. This is first mole, changing it into secondary. This is second mole, changing it into tertiary. And this is the fourth mole, that is changing it into quaternary ammonium salts. So up to this is a Hofmann exotic methylation. If this compound, quaternary ammonium salt, is being treated with the moist silver oxide, moist silver oxide का मतलब है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्या होगा कि AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा और OH जो है वो क्लोरीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा. That is going to form the quaternary ammonium hydroxide. Then if you heat this sample, it changes it into a tertiary amine, but it releases the larger group from here, not the smaller groups. तो जो भी लार्जर ग्रुप है, यहां पर इथाइल लार्जर पार्ट है तो लार्जर पार्ट को रिलीज कर देगा, लेकिन खुद तो टर्शियरी अमीन में चेंज हो गया. ये OH नेगेटिव इस लार्जर पार्ट से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट जो है वो एक अल्कीन और टर्शियरी अमीन बनती है. क्या बनती है? अल्कीन और टर्शियरी अमीन. सो फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जो लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट बना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास स्टार्टिंग अमीन की क्या स्ट्रक्चर रही होगी. तो पहले जो है हॉफमैन एक्सोटिक मिथिलेशन है, देन इट इज हॉफमैन डिग्रेडेटिव रिएक्शन, मींस डिग्रेडेशन ऑफ दिस क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो दिस इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन. See some example of this. So here you see the starting component, it is a piperidine, pyridine का डेरिवेटिव है, that is the piperidine. When treated with the 2 moles of methyl chloride, तो ये सेकेंडरी अमीन है, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हुई है? सेकेंडरी अमीन. सो व्हेन यू आर ट्रीटिंग विद द मिथाइल क्लोराइड, तो एक से ये टर्सरी में चेंज होगी और अगले से मिथाइल क्लोराइड से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में चेंज हो गई. देन ट्रीटिंग विद द मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इट इज गिविंग दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. वन इज cyclic one and another 2 are the simple methyl groups. When you heat it, then it will break from one side, so you will get this alkene here and joined by this bond. Again you treat with the methyl chloride, again it is changing into the this chloro derivative here, and if further it is being treated with the silver oxide, then it is changing into the corresponding ammonium hydroxide, and again it is heated to liberate the at last diene, which is pentadiene, 1, 2, 3, 4 and 5 carbon atom, and that is a isolated diene. Isolated का मतलब है कि इसमें एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है. इट स्टेबलाइज इटसेल्फ by changing into isomer, and that is a conjugated diene. It is a conjugated diene. So these type of products are formed, or alkenes are formed with the help of the Hofmann exotic methylation or Hofmann degradative reaction. Now this Hofmann degradative or elimination reaction, whatever it is, that is being discussed here. So we have to discuss the course of the reaction, what type of alkene that is formed here. So there the product formed, it is 2 alkenes. One is this one, another is that one. First of all see the substrate. ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये नाइट्रोजन है, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल, और इसके साथ ये पार्ट लगा हुआ था.
सो इट मीन्स 1 2 3 4 कार्बन एटम की चेन लगी हुई है। तो ये NH2 इसका मतलब ये प्राइमरी अमीन रही होगी। इसमें मिथाइल क्लोराइड, अगला मिथाइल क्लोराइड, अगला मिथाइल क्लोराइड, 3 मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन जो वो कंप्लीट हुआ है। देन ट्रीटिंग विद द मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इट इज गिविंग क्वाटनरी अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको आप हीट करते हो तो ये जो लार्जर पोर्शन है यहां से ये पोर्शन रिलीज हो जाएगा। अगर ये पोर्शन रिलीज होता है तो आपके पास टर्सरी अमीन बनती है, ये टर्सरी अमीन ट्राइमिथाइल अमीन। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा या तो आपके पास टर्मिनल अल्कीन बन सकती है या फिर आपके पास जो है वो एक सिमेट्रिकल अल्कीन बन सकती है। सिमेट्रिकल मीन्स दोनों साइड जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम एल्काइलेटेड अल्कीन। सो वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, it is nearly 5%, another one it is formed 95%. Whenever Hoffman elimination reaction is there, it is found that the terminal alkene formed, it is 95%, and the maximum alkylated alkene formed, it is merely 5%. So that is a anomaly here. If we discuss simple elimination reactions, just like in case of alkyl halide we have discussed in the lower classes, तो सेट-जेफ रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहलिक KOH अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आपके पास जो है वो दो अल्कीन बनती हैं, एक जो है वो टर्मिनल और एक जो है वो मैक्सिमम एल्काइलेटेड, या उसको आप सिमेट्रिकल अल्कीन बोलोगे। तो एक प्रोडक्ट 20% बन रहा है, दूसरे में 80% बन रहा है। कितना बन रहा है? 20% एंड 80%। तो ये जो है ये सेट-जेफ एलिमिनेशन है, ये आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ रखा है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास मैक्सिमम एल्काइलेटेड अल्कीन बनेंगी। लेकिन अगर इसी तरह का एलिमिनेशन हमने हॉफमैन में चेक करना, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में, देन इन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन terminal alkene is formed 95% and this alkene formed 5%. इसका मतलब कि हॉफमैन एलिमिनेशन और सेट-जेफ एलिमिनेशन दोनों आपस में एंटी हैं। एक में मैक्सिमम एल्काइलेटेड अल्कीन बनती है और दूसरे में जो है वो टर्मिनल अल्कीन जो है वो बनती है। So this gives us a choice by which way we have to proceed in order to get the terminal alkene or in order to get the symmetrical alkene. But now we will check the reason that why in case of Hofmann elimination it is terminal alkene is formed but it should be a symmetrical alkene. बननी क्या चाहिए थी आपके पास? सिमेट्रिकल बननी चाहिए थी। उसका कारण क्या है? सिमेट्रिकली जो है सिमेट्रिकल अल्कीन जो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है और साथ में ये जो है वो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से भी स्टेबल है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के हिसाब से हाइपर कंजुगेशन के केसेस जो हैं वो लिखे जा सकते हैं। सो दिस इज मोर स्टेबल, लेकिन मोर स्टेबल नहीं बन रही है, जबकि लीस्ट स्टेबल अल्कीन बन रही है, दैट इज एल्काइलेटेड अलोंग वन साइड, नॉट एल्काइलेटेड अलोंग द अनदर साइड। होना किस तरीके से चाहिए था? होना सेट-जेफ एलिमिनेशन के तरीके से चाहिए था कि 80% आपके पास डाउनवर्ड कंपोनेंट बनता, 20% ऊपर वाला। लेकिन यहां पर जो है ऊपर वाला कंपोनेंट, टर्मिनल वाला कंपोनेंट 95% बन रहा है और नीचे वाला केवल 5% बन रहा है। लेट अस check for the reason here. So we will discuss now Hofmann elimination versus the Seitz-Jeff elimination. How these two differ, in what respect they differ with each other, both elimination reactions. So this is the substrate here that we want to discuss. तो इसमें जो है, इसमें ये भी प्राइमरी अमीन है, पिछला एग्जांपल है यहाँ पर डिस्कशन के लिए। तो ये पार्ट जो है दैट पार्ट इज ड्यू टू द एल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर NH2 ग्रुप रहा होगा, NH2 ग्रुप को आप मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट करते गए तो ट्राई मिथाइल नाइट्रोजन यहां बन गई और ऊपर वाला एल्काइल पार्ट जो वो ऑलरेडी अमीन के साथ अटैच था। नाउ दैट इज द अल्फा कार्बन एटम जो डायरेक्टली इस ग्रुप के साथ अटैच्ड है। उसके बाद एक बीटा कार्बन एटम ये है और एक बीटा हाइड्रोजन ये है। सो दीज आर द टू बीटा हाइड्रोजन, एक ये है एक ये है।
अगर ये वाली हाइड्रोजन जाती है तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा ऊपर वाला। कौन सा? अगर फर्स्ट वन हाइड्रोजन यहां से जाती है, और अगर सेकंड वन हाइड्रोजन यहां से जाती है तो आपके पास नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। नाउ व्हाई इट इज दिस हाइड्रोजन दैट इज लॉस्ट, नॉट दिस वन इज लॉस्ट। जबकि यहां से हाइड्रोजन का लॉस जो है इस पोर्शन से, दैट इज थर्मोडायनेमिकली अलाउड। रीजन इज वेरी सिंपल। नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ऑटोमेटिकली इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो दोनों साइड से मैंने शो किया है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो वो विड्रॉ कर रही है। नाइट्रोजन अगर सिंपली अटैच्ड हो तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, लेकिन नाइट्रोजन यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सो इट इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। बट आई एम सेइंग कि सिंपल नाइट्रोजन अटैच्ड है तो उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नाइट्रोजन जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी। इफ एनीथिंग दैट इज मच मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देन इट इज रिलीजिंग ए हाइड्रोजन फ्रॉम लेस हाइंडेड साइड। लेस हाइंडेड साइड का मतलब ये थोड़ी सी स्टेरिकली हाइंडेड साइड हो गई। स्टेरिकली हाइंडेड मींस दिस ग्रुप इज बल्की ग्रुप, नाइट्रोजन के साथ भी 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो इस केस में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो लेस स्टेरिकली हाइंडेड पोर्शन से जो वो रिलीज हो रही है, दिस पोर्शन इज लेस स्टेरिकली हाइंडेड। दूसरा कारण क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यहां पर इतनी ज्यादा है कि दैट इज नॉट वेटिंग फॉर द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। उसमें जहां से हाइड्रोजन इजिली रिलीज होती है तो वहां से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव की जा सकती है। और एक बात है यहां पर कि ये मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सो ये मिथाइल ग्रुप पीछे जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन को कम एसिडिक बना रहा है। जबकि यहां पर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्योंकि इसी कार्बन के साथ क्या लगा है, एच लगा है। यहां जिस कार्बन के साथ एच लगा उसके साथ एक और मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। तो दीज हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन्स दे आर लेस एसिडिक एंड दीज बीटा हाइड्रोजन्स दे आर मोर एसिडिक। So more acidic beta hydrogens they are lost and we are getting this type of product. So that is the explanation for the Hofmann elimination. I am repeating again कि यहां पर कितने फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इज इंक्रीजिंग, देन इट इज नॉट वेटिंग फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट विच इज विल बी फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ दिस हाइड्रोजन। अनदर थिंग, दिस साइड इट इज स्टेरिकली हाइंडेड साइड, सो हाइड्रोजन इज नॉट लॉस्ट, बट दिस साइड hydrogen is free, so easily it is lost. Another thing, methyl groups they are electron donating in nature, so they are making it less acidic. इलेक्ट्रॉन सप्लाई की वजह से ये जो पेयर है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये कहां रहेगा, टुवर्ड द हाइड्रोजन, so H positive loss is not easy. But here strong electron withdrawing effect is causing the pair to shift toward the carbon and H positive ion is lost easily. H पॉजिटिव आयन किसके साथ जाएगा, इसके सारे के साथ OH नेगेटिव लगा होता है, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव वाटर बनेगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या बनेगा, अल्कीन बनेगी। सो टर्मिनल अल्कीन इज फॉर्म्ड। सो वन इज फॉर्म 95%, अनदर इज फॉर्म द 5% कंपोनेंट। नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट हियर। सो दिस इज द simple elimination reaction or Heads-up elimination reaction. When I treat it with the alcoholic potash, then again there is a possibility that one hydrogen this may be lost or another hydrogen this may be lost. But in this case, this hydrogen is lost. One reason is here, chlorine is not so effective electron withdrawing as in comparison to the N positive. So this means it can wait for any hydrogen, either this one or this one. तो अगर इतना ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है
तो हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकती है और वहां से भी रिमूव हो सकती है. वट हाइड्रोजन लॉस इज फ्रॉम हेयर, रीजन बीइंग that the product formed is thermodynamically stable. Product formed is thermodynamically stable. So you are getting these two products. What one product is, number one 80% symmetrical and another one it is the 20%. अब ये बात देखते हैं कि कहां तक ये सही बैठता है कि यहां पर जो है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम है. अगर मान लो यहां पर फ्लोरीन होता ही तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर जो है क्लोरीन से बहुत ज्यादा है. अगेन वो केस किस तरह हो जाता, हॉफमैन एलिमिनेशन की तरह हो जाता. नाइट्रोजन पॉजिटिव भी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी जितनी फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी. तो फ्लोरीन जो है उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये प्रोडक्ट रेशो इंटरचेंज हो जाएगी. आपके पास टर्मिनल जो है वो 80% बनेगा और जो सिमेट्रिकल अल्कीन है वो 20% बनेगा. सो दिस इफेक्ट इज ए मिक्स्ड इफेक्ट विच इज रिलेटेड विद द acidity of the beta hydrogens as well as which is related with the electron withdrawing power of the concerned group, which is causing the loss of the hydrogen from the sample. So that is the case of Hofmann elimination versus the Saitchev elimination. Next reaction, it is Carville-Amine test, a very specific test this one. दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर द प्राइमरी अमीन्स. इसका मतलब ये रिएक्शन जो प्राइमरी अमीन्स ही देती हैं, बाकी अमीन्स ये रिएक्शन जो वो शो नहीं करती हैं. व्हाट इज दिस रिएक्शन? whenever a amine of the type RNH2, that is the primary amine, it is treated with the chloroform in potassium hydroxide, provided the conditions are alcoholic one, means no water is being utilized. Potassium hydroxide is dissolved in the ethanol. So ethanol, KOH, chloroform and primary amine. Then it forms alkyl isocyanide plus KCl plus water. ये ऐसा रिएक्शन है कि जिसको लैब में किया जा सकता है. अल्काइल आइसोसाइनाइड्स की बहुत ज्यादा फाउल स्मेल होती है, तो फाउल स्मेल आने से पता चल जाता है कि अल्काइल आइसोसाइनाइड जो वो रिएक्शन में कम बना हुआ है. तो अमीन को ट्रीट करना होता है क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस? Reaction takes place by the formation of dichlorocarbene. So this chloroform reacts with the hydroxyl ions. So hydrogen is lost from here. It is giving the CCl3 negative ion. This loses one of the chlorine, not shown here. Plus it gives the dichlorocarbene. So dichlorocarbene, Cl negative आना था यहाँ पर, Cl negative plus dichlorocarbene. Dichlorocarbene reacts with the nitrogen of the amine. तो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करती है. डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो न्यूट्रल स्पीसीज है. कार्बन के 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ आ गए और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है. सो 4 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हैं. व्हेन इट रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन देन इट फॉर्म्स ए बॉन्ड विद द नाइट्रोजन. तो बॉन्ड बनने पे इस पे जो 1 2 3 बॉन्ड पूरे हो गए और एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आएगा जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा. क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. सो नाइट्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. सो नाइट्रोजन विल रीगेन इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लॉस ऑफ दिस हाइड्रोजन टू द कार्बन. तो ये कार्बन को यहां हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया जिसकी वजह से इसका पेयर जो है वो आ गया. देन दिस पेयर अगेन enters here and that is lost to the this side. So that is going to form RNH positive and doubly bonded here it is C and Cl. So this nitrogen again regain this bond to as a lone pair and hydrogen is lost from here. Then it is nitrogen again giving the electron. It is forming a triple bond and chlorine is lost from here. So at last H is lost with the OH negative. It is forming alkyl as isocyanide. How to remember this type of mechanism? इसमें ये देखो कि आपने क्लोरोफॉर्म यूटिलाइज की है तो डाइक्लोरोकार्बीन का पहला स्टेप है एडिशन ऑफ द डाइक्लोरोकार्बीन टू द अमीन. ये लॉन पेयर जो है नाइट्रोजन का दैट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद द दिस कार्बन. तो नाइट्रोजन ने अगर वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पेयर की वजह से यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज.
देन जो OH नेगेटिव है वो सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करते रहेंगे। तो OH नेगेटिव की वजह से वाटर H पॉजिटिव आयन के साथ मिक्स करके वाटर, तो ये जो है ये दैट इज लेफ्ट एज ए पेयर ओवर द नाइट्रोजन। देन अगेन दिस पेयर इज एंटरिंग हेयर बिटवीन द नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड क्लोरीन इज लॉस्ट फ्रॉम हेयर। जब डबल बॉन्ड होना है तब भी ये पेयर एंटर करेगा, जब ट्रिपल बॉन्ड बनना है तब भी ये पेयर यही एंटर कर रहा है। फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है दैट इज फॉर्म ड्यू टू द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन टू द नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड। तो हर एक स्टेप में यही रिएक्शन है। जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर को द्वारा गेन कर ले रही है। हाउ? इट इज फ्रॉम द अटैच्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अटैच्ड है, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दो आप, तो ये पेयर जो है द्वारा किसके ऊपर बच जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। सो इन दिस वे द रिएक्शन कंप्लीट्स एंड इट फॉर्म्स द एल्काइल आइसोसाइनाइड्स। रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम।